Okay, shall I start the lecture? You all are ready? Yes? Yes, sir. Yes. Okay, good. Today we will start the new chapter. The name of this chapter is Work, Energy and Power. Okay. Can anyone tell me what do you mean by work, energy and When power? we Yes? and when we do something and we have applied force on that object and then object moves, then it is known as work as done. Okay, good. Basnavi, you are absolutely right. Okay. But in general lives, we always use a terms work. Okay. For example, when you go to school and you are new to the school, your teacher asks that what your father is doing. Actually, he will ask, what's your father's works? Okay. And sometimes our answer is like that, I am working, my father is working in a factory. Am I right or not? Yeah, Yes, sir. I work in a factory. Okay. For example, I am a teacher. Okay. And if someone asks me what is my answer will be I work in a school. Okay. Now tell me, is we are talking about this work or we are talking about another work? Yes, Vaishnavi, Purva Singh, others, Arpita, tell me, is we are talking about these works or another works? You can participate. Okay. Another work. Another works. We are not talking about these works. Okay. Works have a lot of meaning in our general lives, and we are not talking about these types of work. Then there is a question in your mind about which work we are going to study. Okay. We are going to study work that is caused because of the force. It is clear. We are going to work to study the work that is caused because of force. Okay. And about force. We already study about force. Can anyone tell me what is force? We apply force to an object. Yes, we apply and force. Okay, force is nothing but an external agent that will create acceleration to an object. It is clear? Force is an external agent that will create acceleration or try to create acceleration to an object. For example, let this be a block. Okay, and on this block we apply a force. Let this force is apply on this block. What happened because of this block? Because of this force, the block will move or try to move. If this force have the capacity to create acceleration in this block, then the block will accelerate. And if this force have no capacity, then this block will not accelerate. Is this clear? Yes or no? Yes. Yes. Yes, sir. To always remember that force is an external agent. Now tell me, is force is external agent all the times, or it may be internal agent also? Tell me, Purva, force is always external agent or maybe internal agent? Yes. Others?
Force is external. Beta, force is external as well as internal agent. Okay, when we are talking about the internal force, that time the internal force is responsible for some change in the structure. For example, when we study about the matter, when we study about the matter, okay, we study about the matter. We study that matter have mass and occupy a space. Is this clear? And matter are classified into three types, that is the solid, liquid and gas. Okay, when we study about the solid, what we study is, we study that the molecular space or the force of attraction between the molecules or atoms in the case of solids are very close or very strong. Is this clear? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So the force between the molecules of molecules or atoms of a solid body is called the Van der Waals force. This is an internal force. Okay, and this force which exert on whole of this block, and this force is external force. So external force or internal force that will create acceleration or try to create acceleration to whole block or the atoms or molecules of a block. That force, that external agent or internal agent is simply called the force. It is clear? Yes or no? Others? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो जो yes, I have one message. Yes sir. Okay. तो work. Shall I teach you in English only or in bilingual? Yes, you are comfortable in bilingual or in single language? Tell me. So, Sir, as you wish. No, it's not my wish. Okay, it depends on you. so If you single are language. if you are comfortable in bilingual, then I will teach you in bilingual. And if you are comfortable in single language, that is English, then I will teach you in English only. Now tell me. So teach in Hindi. English only. Hindi, sir. Okay, I will teach you in bilingual. Okay. Okay. गुड. इसी तरह जब बोलते रहोगे ना, तो क्या होगा, मैं आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करते जाऊंगा. अभी जैसे यादव हैं, अगर आप बोलते ही नहीं तो मैं सिर्फ एक सिंगल लैंग्वेज में पढ़ाता. ओके, अब देखो क्या होता है. सपोज करो कि ये कोई ब्लॉक है, ठीक है. अब इस ब्लॉक के ऊपर क्या होगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ओके, क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपने पोजीशन को चेंज करेगा. यस और नो? इफ दिस फोर्स हैव द कैपेसिटी टू चेंज द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, अगर इस फोर्स का क्या हो, कैपेसिटी हो कि ये इस ब्लॉक के पोजीशन को चेंज कर दे. क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट या हर एक बॉडी के पास क्या होता है, उसकी अपनी इनर्शिया होती है. इनर्शिया क्या होता है, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट it remains want to be at rest, and if a body in motion it remains want to be in motion. तो ये फोर्स क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को ब्रेक करेगा, तभी जाके ये ब्लॉक क्या हो सकता है, मूव कर सकता है. अगर इस फोर्स में ऐसा टेंडेंसी होगा कि ये इस ब्लॉक के इनर्शिया को चेंज कर दे, ठीक है, एक्सीड कर जाए, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, अपने पोजीशन को चेंज करेगा और फ्रॉम ए पोजीशन से बी पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा. इट इज क्लियर और नॉट? यस सर. यस. तो अब यहाँ पे हुआ क्या, डिस्प्लेसमेंट हुआ. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? Change in position. Not the position. Displacement is change in position vector. It is clear? क्या होता है, change in position vector. ठीक है, you already study about the vector and the scalar quantity.
in chapter 1, that is the motion. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. And in that chapter, you already studied that all physical quantity are divided into three types. The first one is called the scalar quantity. The second one is called the vector quantity. And the third one is called the tensor quantity. You remember it or not? Remember, sir. Remember. Yes, sir. Now can anyone tell me what is vector quantity? Be fast. Can anyone tell me what is vector quantity? Yes? Purva, you can try, at least try. Displacement velocity. Yes, these are the example of good. So Sujata, good. Okay, these are the example of vector quantity. Displacement, velocity, these are the example of vector quantity. But what is vector quantity actually? Can anyone define? Direction, That has direction both and speed magnitude has and given. direction. Yes, very good. Okay, vector quantity are those physical quantity which have direction. Okay, direction and magnitude. Is this okay? But you have to remember one thing. Vector quantity have direction, have magnitude, and also follow vector law of addition. Is it okay? What you have to remember? That vector quantity will follow the vector law of addition. Is it okay? Vector law of addition. Is this clear? Yes, sir. When I say vector law, when I said vector law, it means triangle law, parallelogram law. Is this clear? For example, let the object is displaced 5 kilometers in this direction and 3 kilometers in this direction. Now tell me, what is the displacement here? What is displacement here? Can anyone tell me? So can you repeat Nothing. question? What I said कि ये देखो यहाँ से यहाँ क्या 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ से 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो अब पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? What is displacement here? Can anyone tell me what is displacement? Shortest distance Shortest traveled by an Distance an traveled by object. an object. Shortest distance traveled by an object. Okay. Now tell me what is the shortest distance between this A and B point? This is the shortest distance. Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. How can you calculate this shortest distance? How you can By calculate Pythagoras theorem? Yes, absolutely. 100% right. We can calculate this shortest distance by applying the Pythagoras theorem. That means by applying the triangle law. Is this clear? And the length, this shortest distance will be 5a squared plus 3a squared. Is this clear? Yes, sir. And we all know that displacement is a vector quantity. And now tell me, will we follow the simple law of addition for the vector quantity or a special law? Simple law of addition means what? So for example, let A to B is the 5 kilometer and B to C, it will be the 3 kilometer. Now tell me what is the distance here? What is distance here? Can you repeat once again? Yes, अगर कोई ऑब्जेक्ट A पॉइंट से स्टार्ट करता है, A से B आता है, फिर B से C जाता है, तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा होगा? 8 meter. 8 मीटर. आपने क्या किया? 5 plus 3 कर दिया. Yes or no? Yes, sir. Yes. So this is the simple law of addition.
हम लोग इसको क्या किए, सिंपली ऐड कर दिए। क्या हमने इस तरह एडिशन किया? क्या हमने डिस्प्लेसमेंट के केस में सिंपल लॉ ऑफ एडिशन किया, सिंपली ऐड किया? यस और नो? क्या Yes, sir. हम लोग ने जब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पे, क्या हमने इस चीज को सिंपली ऐड किया या एक ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया? यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रायंगल लॉ को अप्लाई किया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और जब हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे थे क्या किए, सिंपली दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिए। इसलिए डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर क्वांटिटी हमेशा सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, और वेक्टर क्वांटिटी हमेशा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, या स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। इट इज क्लियर? Yes or no? Yes, sir. Yes. Now tell me, this block shift from point A to point B means there is change in position. From A, Yes. there is change in position from A to B. Okay, and this change in position or change in position vector is called the displacement. It is clear? And why this displacement is caused? What is the agent that is responsible for this displacement? What is the agent responsible for this displacement? Can anyone tell me? ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से बी, ये क्यों हुआ? इसके पीछे क्या कारण था? Because of the shorter distance. No, because of this force. Because we apply some force on this block. It is clear? And because of this force, the block is displaced from point A to point B. Yes or no? Yes, sir. And what we said, that this force, because of this force, there is displacement, and when there is displacement, that means this block had done some work, or some work is done by this block. Is this clear? Shall I repeat it? Shall I repeat it? Yes, Mukund? No, sir. नो, देखो मैंने क्या बोला, ये ब्लॉक ए से बी गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका पोजीशन में चेंज हुआ, और इस पोजीशन में चेंज हुआ तो क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ, व्हाई दिस डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, ये डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, फोर्स, जो इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई किया गया। तो जब इस फोर्स के कारण इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमने क्या किया, हमने क्या बोला कि इस ब्लॉक के द्वारा क्या हुआ, वर्क डन किया गया। इज दिस क्लियर? यस और नो? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you always remember that because of the force there is displacement. Okay, and when an object is displaced from its initial position, then what we said, that the block had done some work. Okay, okay, Yes, sir. Yes, sir. shall I erase the screen? Yes, sir. Sure. Yes, sir. Okay, so after knowing these all things, what we can say, we can say when a force acts on an object, and object moves, we say that the force has done work
on the object. It is clear? Yes or no? हम लोग कोई वर्क हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा वर्क किया जा रहा है, हम लोग ये कब बोल पाएंगे? जब क्या होगा? जब उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या एक्ट करे? फोर्स एक्ट करे। इट इज क्लियर? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या एक्ट करे? फोर्स एक्ट करे। और इस फोर्स जब एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। और जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तब हम क्या बोल सकते हैं कि द फोर्स हैज डन वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, it is clear. Okay. In another language, what we can say? The work done by force acting on an object is equal to the product of the force and the displacement of the object in the direction of the force. That means the force work done is nothing but equal to force into displacement. It is clear? क्योंकि क्या चाहिए? देखो, वर्क डन के लिए फोर्स चाहिए, अगर फोर्स नहीं होगा वर्क डन नहीं होगा। इज दिस ओके? सिमिलरली जब फोर्स एक्ट करेगा तो साथ साथ क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको जज करने के लिए आपको दो चीज के ऊपर फोकस करना होगा। पहला चीज क्या है? वो फोर्स। आपको देखना पड़ेगा क्या ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अगर एक्सर्ट कर रहा है फिर क्या देखोगे कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या देखना है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है मतलब क्या? फोर्स भी एक्सर्ट करा ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट भी अगर हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन से दैट द वर्क इज डन बाय द फोर्स। इट इज क्लियर? अगर मानो कि फोर्स नहीं हो रहा है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिना फोर्स का कोई चीज डिस्प्लेस होगा? No, sir. नो सर। इसका मतलब क्या होगा? वर्क डन नहीं होगा। इज दिस क्लियर? अब मानो Yes, sir. फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, क्या वर्क डन होगा? No work will not be done. नहीं होगा। सपोज करो आप सबके घर में अलमीरा होगा, आप क्या करो? अलमीरा पर एक फोर्स अप्लाई करो। या आप सबके घर में वॉल होगा, आपके घर का वॉल होगा ना, हाँ है कि sir. नहीं है? सर तो अपने अपने वॉल के ऊपर क्या करो? इस तरह, यहाँ पे देखो, ये वॉल है, ये वॉल है ना, हाँ देखिए यहाँ पे ये वॉल है ना, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। नाउ टेल मी, force is applied by me on this wall, yes or no? Yes. Now tell me, is this wall displaced from its position? No. 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 Now tell me, is the force that applied by me is doing work? Is this force doing work? The force which applied by me is doing work, yes or no? When? Shall I repeat the question? Yes, sir. Okay. जब हम वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहे थे, क्या वॉल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था? नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था। तो क्या मैं बोलूंगा कि जो फोर्स हमने वॉल के ऊपर लगाया, क्या वो फोर्स वर्क डन को कर रहा है? नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। मतलब क्या? वर्क डन फोर्स के द्वारा तभी होगा जब फोर्स का भी एग्जिस्टेंस हो और डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जिस्टेंस हो। इट इज क्लियर? अगर इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी एक चीज एब्सेंट होगा, हम क्या बोलेंगे? वर्क इज नॉट डन। इट इज क्लियर? Yes, sir. तो फोर्स के लिए क्या क्या चाहिए? वर्क डन के लिए क्या क्या चाहिए? फोर्स भी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए।
दोनों को एक साथ रहना कंपलसरी है। ओके, अब फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सॉरी वर्क डन का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द फोर्स and this is the displacement. It is clear? अब यहाँ पे देखो, जब हम लोग फिजिक्स में बात करते हैं ना, ये आपके लेवल की बात नहीं है। मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, W वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखा हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। इट इज क्लियर? और ये डॉट रहता है, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट D। ये दोनों साइन को हम लोग यूज करते हैं मल्टीप्लाई के लिए, एक क्रॉस को भी यूज करते हैं और एक डॉट को भी यूज करते हैं। यस और नो? Yes, sir. करते हैं। ओके, अब देखो, जब हम लोग बोलते हैं ना वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फिजिक्स में इस टर्म को बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। और हमेशा याद रखना कि जो वर्क डन होता है वो फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ये गलत है, एक्चुअल में ये गलत है। रियलिटी क्या होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज क्लियर? वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। ये इस चीज को हम लोग जब 11th क्लास में जाएंगे तब इस चीज को और हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम 11th में ऐसा लिखते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डी। इसका मतलब क्या होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द क्रॉस इज डॉट प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? यस? Yes, sir. Yes. Okay. Now, can anyone tell me what is the SI unit of work done? इस वर्क का SI यूनिट क्या होगा? Work is equal to force dot D. What is the SI unit of work done? Yes, Mukund, Sujata, Arpita. Anyone? F F Yes. point D. No. What is the SI unit of force? Can anyone tell me? Can anyone tell me what is the SI unit of force? Yes, Ayush, Manoj, others? Sir, SI unit is force is Dan Dyne is not the SI Newton. unit. Yes, Newton. yes, 100%. Good. Force का SI unit क्या होता है? Newton. Okay. And what is the unit of displacement? Meter. Yes, meter is the unit of displacement. Now tell me, what is the SI unit of work done? Joule. Yes, joule. But what is here? Newton meter. This is the SI unit of work done. And this Newton meter is called joule. Is this okay? If someone asks you, what is the SI unit of work done? What is your answer? Newton meter. Newton meter is the SI unit of work done. And Newton meter is called joule. Okay? And joule is represented by J. Is this clear? Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay, shall I raise the screen? Sure. Yes. Yes. Yes, sir. Okay. Now, can anyone define 1 joule? What do you mean by 1 joule? Okay, please write it. When a force of 1 Newton exert on an object and
create a displacement of 1 meter, then 1 joule work is said to be done. It is clear? हम लोग कब बोलेंगे कि 1 जूल वर्क हो रहा है? कब बोलेंगे? जब किसी ऑब्जेक्ट, मानो ये ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक है, ठीक है, अब इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कितना? 1 न्यूटन का, और मानो इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से यहां इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये मानो कि 1 मीटर है। इट इज क्लियर? ठीक है, जब इस ब्लॉक के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और इस 1 न्यूटन के फोर्स के कारण इस ब्लॉक का 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस ब्लॉक के द्वारा ये जो फोर्स है ये क्या कर रहा है? 1 जूल वर्क को कर रहा है। इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes. Can you explain again? यस यस, व्हाई नॉट। मैंने क्या बोला, ये ब्लॉक है, ये मानो ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 1 न्यूटन। कितना है मैग्नीट्यूड? 1 न्यूटन। अब इस 1 न्यूटन फोर्स के कारण ये जो ब्लॉक है इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट, और इस डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना? 1 मीटर है। तो जब किसी ब्लॉक के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करे और उस 1 न्यूटन की फोर्स के कारण उस ब्लॉक के द्वारा 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म किया जाए, तब हम क्या बोलेंगे कि इस फोर्स के 1 न्यूटन फोर्स के द्वारा 1 जूल वर्क किया गया। इट इज ओके? यस और नो? Yes, sir. एनीवन हैव एनी डाउट? No, sir. 1 जूल वर्क कब होगा? जब किसी ब्लॉक के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करे और इस 1 न्यूटन के फोर्स के कारण 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो, तब जाके क्या होगा? 1 जूल का वर्क परफॉर्म होगा। इट इज क्लियर? यस? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, वर्क से रिलेटेड, वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला को देखेंगे, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसका मतलब सबको समझ में आया कि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मानो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। इज दिस ओके? जैसे मानो ये कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, अब इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगेगा F और ये ब्लॉक ए पोजीशन से मूव कर जाए और बी पोजीशन पे आ जाए, अब इस ब्लॉक का ये डिस्प्लेसमेंट होगा। यस और नो? बोलो बेटा, डिस्प्लेसमेंट होगा इस ब्लॉक का। Yes. फोर्स का डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट और राइट? फोर्स का डायरेक्शन ये है, राइट डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है? टेल मी। In right side only. इन राइट डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा? राइट डायरेक्शन। मतलब फोर्स का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ऑलवेज याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर इट, कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा तब वर्क डन बराबर क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इट इज क्लियर? Yes, sir. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क डन का मैग्नीट्यूड कब होगा? जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो? सेम हो।
समझ में आया? यस और नो? Yes, मान लो, sir. मान लो कि फोर्स का डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन इधर है, तो वर्क डन क्या होगा? यहाँ पे वर्क डन क्या होगा बताओ? क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है? Yes, sir. यस सर। तो हमने क्या बोला था, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा तो वर्क डन बराबर क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इट इज क्लियर? Yes, sir. Clear. ओके, अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? आप लोग जल्दी से लिखो इस क्वेश्चन को, ठीक है? और आंसर बताओ। ए बॉय pushes a book by applying a force of 5 Newton. Find the work done by this force in displacing the book through 20 centimeter along the direction of the push. Okay, I will do it or you will do? आप खुद करोगे या मैं मुझे करना होगा? So can you tell like how we have to do? Then we will do it. Okay, okay, okay. देखो, a boy push the book. Suppose this is the book, okay? Okay, and boy push the book means the boy will apply a force on the book. Is this clear? And what is the magnitude of this force? The magnitude of this force is equal to 5 Newton. Okay, here it is given. Okay, and because of this 5 Newton force that applied on this book, what happened? The book is displaced through 20 centimeter. In which direction? In the direction of the push. Means this book will move from their initial position to the final position, and how much? It will move by 20 centimeter. Is this clear? Yes, sir. Yes. Now tell me, the displacement of the force, direction of the force and the direction of displacement is same or not? Same. Same. Means force is applied in this direction and displacement is also in this direction. Means the direction of force and displacement is same. If the direction of force and displacement is same, then what is work done? Then work done is equal to force into displacement. Anyone have any doubt? No, sir. No. Okay. Now tell me, what is 1 joule? 1 joule is nothing but 1 Newton 1 force. Newton. 1 Newton force when applied on an object, and because of this 1 Newton, how much displacement is there? 1 meter displacement. Okay. Is this clear? That is called 1 joule. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 joule बोलते हैं. अब एक चीज बताओ, यहाँ पे फोर्स क्या गिवन है? 5 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट क्या है? 20 सेंटीमीटर. अब वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब 5 इंटू 20 कितना होगा? 100 न्यूटन सेंटीमीटर. आंसर होगा? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now tell me,
Can Newton centimeter is replaced by joule? Yes or no? Can Newton centimeter is called 1 joule? बोलो यार। देखो, कभी भी न्यूटन सेंटीमीटर को हम लोग जूल नहीं बोलते हैं। जूल के लिए क्या होता है? 1 न्यूटन 1 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिस्प्लेसमेंट गिवन है किसमें, सेंटीमीटर में, इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? बोलिए, इस डिस्प्लेसमेंट को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? मीटर। मीटर। यस यस, गुड गुड। किसने बोला? वेरी गुड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 को 100 से डिवाइड करना होगा। यस और नो? यस सर। यस सर। यस। तो अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मेरे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन। हम क्या लिखेंगे, 5 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, 20/100। कितना, 20/100। अब ये क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर होगा। यस और नो? हाँ Yes. यस। और इसी 1 न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 जूल बोलेंगे, क्योंकि न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। किसी कोई डाउट है इसमें? Anyone have any doubt? Huh? No, sir. No. Shall I erase this? Yes, sir. Yes. तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम था। अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्स displacement in the direction opposite to the force। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या था, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन था वही फोर्स का डायरेक्शन था, लेकिन अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अपोजिट है। मानो क्या, फोर्स का डायरेक्शन अगर इधर है और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या होगा, इसका अपोजिट इस डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का। यस और नो? पूर्वा, पूर्वा, मुकुंद, बेटा फोर्स का डायरेक्शन इधर है ना, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन होगा, तभी तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा। और यस हमेशा सर। याद रखना कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो, क्या हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो, तब वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इज दिस क्लियर? यस और नो? Yes, sir. यस। तो हमेशा याद रखना, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा तब वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स और डायरेक्शन का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो वर्क डन क्या होगा, माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इज दिस क्लियर? यस यस सर। यस। Yes, sir. Okay, shall we do a question on this, based on this phenomena? ठीक है, क्या हम इसके ऊपर जो बेस है क्वेश्चन करें? यस सर। चलो, a ball of mass 1 kg thrown upward
reaches a maximum height of 5.0 meter. Calculate the work done by the force of gravity during this vertical displacement. क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया कि बताऊं? देखो क्या बोल रहा है, ए बॉल ऑफ मास 1 kg, वो एक बॉल है, ठीक है, इसका मास कितना है 1 kg है, ठीक है, इज थ्रोन अपवर्ड, इसको क्या किया गया, ऊपर की ओर फेंका गया, ठीक है, एंड रीच मैक्सिमम हाइट ऑफ 5 मीटर, मानो ये बॉल का ये मैक्सिमम हाइट है और ये मैक्सिमम हाइट कितना है 5 मीटर, इट इज ओके। तो जब बॉल को ऊपर फेंका गया वो अपने एक मैक्सिमम हाइट को रीच करेगा, उसके बाद क्या होगा, नीचे गिरने लगता है, यस और नो? Yes, sir. यस। तो अब आपको बताना क्या है, जब हम बॉल को ऊपर फेंके एक मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट कितना है 5 मीटर, 5 मीटर को रीच करने के बाद वो बॉल, जब वो 5 मीटर को रीच करता है, then you have to calculate the work done by which force, by force of gravity, okay, and can anyone tell me what is the magnitude of force of gravity? force of gravity का magnitude क्या होता है? yes, tell me, according to Newton's second law, what is force? Net force is equal to, according to Newton's second law, what will be the net force? Yes, tell me. Sujata, Mukund, Mass Purva? into acceleration. Good, mass into acceleration. Okay. Here the mass of this block is given, that is 1 kg. And what is acceleration here? In this case, what is acceleration in this case? 5 meter. 5, no, 5 meter is not the acceleration, it is the height. That means 5 meter is the displacement of the ball. It is not the acceleration. This 5 meter is the displacement of the ball. Okay. What is acceleration here? The acceleration here will be g. What is g? Acceleration due to gravity. And what is the value of acceleration due to gravity? Can anyone tell me? This g is equal to 9.8 meter per second square. Is this clear? Yes or no? Huh? Sir, Yes or please no? repeat it again. देखो, according to Newton's second law, net force is equal to mass into acceleration. Mass of this ball is given 1 kg, okay, and acceleration here a is equal to g, and what is g? The acceleration due to gravity is the g. ठीक है, ये acceleration क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं acceleration due to gravity, और इस acceleration due to gravity का वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है किसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा, वो फोर्स क्या होगा mg, और m का वैल्यू क्या होगा 1 into 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या होगा न्यूटन। इज दिस क्लियर? 1 क्या है, गिवन है, मास बॉल का गिवन है, और g का वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों वैल्यू को यहाँ पुट किए, यहाँ से हमें क्या आ गया कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी,
किसी कोई डाउट है? किसी कोई डाउट है? आप ये फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर में पढ़े होंगे, जब हम लोग न्यूटन्स लॉ को पढ़ते हैं कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इसमें किसी को डाउट है? No, sir. नो। नो सर। अब बताओ इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? नीचे होगा या अपवर्ड? अगर हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो अर्थ उसको क्या करता है? अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है। क्या करता है अर्थ उसको? हाँ, अर्थ क्या करता है बेटा? बोलो बेटा, अर्थ क्या करता अपनी है? तरफ अट्रैक्ट कर अपने तरफ अटैक। देखते हैं ना हम लोग, जब किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, आफ्टर अपने मैक्सिमम हाइट को रीच करने के बाद वो बॉल क्या होता है? नीचे गिरता है। गिरता है या नहीं गिरता है? यस सर, Yes, बिकॉज sir, ऑफ गिरता है। ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वो बॉल क्या होता है? नीचे गिरता है। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर होगा या नीचे? नीचे होगा, इस तरह। नीचे। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर है या नीचे? जब बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर है। तो क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है? हाँ, यस सर। यहाँ पे वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एफ डी होगा। टेल मी। yes, sir. यस। और फोर्स का वैल्यू क्या है? माइनस 9.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 5 मीटर इंटू 5, दैट इज न्यूटन मीटर। व्हाट इज द आंसर? इट इज माइनस 49 जूल। एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को No, इसमें sir. doubt है? तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो हमेशा क्या लिखोगे कि वर्क डन बराबर क्या होगा? माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। इज दिस ओके? यस, आ गया समझ में? Yes, sir. ओके, शैल आई रेज दिस स्क्रीन? देखो, अभी तक हम लोग दो केस को पढ़े। फर्स्ट केस में क्या था? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम था या अपोजिट था? Same. सेम था। सेकेंड केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या था? अपोजिट था या सेम? Opposite. अपोजिट था। जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट था वहां वर्क डन बराबर क्या हुआ था? Minus F into D. इनटू डी। और जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम था वहां वर्क डन क्या था? F एफ into D. इंटू डी। एफ इंटू डी। इस दो में किसी कोई डाउट? No, sir. अब देखो, एक केस लेता हूं कि जहां पे फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। इट इज क्लियर? समझ में आया? यस और नो? Yes. यस। यस सर। कोई एक एग्जांपल आप लोग बताओगे जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो? बताओगे बेटा? मैं बताऊं? यस सर। चलो इसको मान लो एरोप्लेन है। ये क्या है बेटा? एरोप्लेन। अब एरोप्लेन का मानो मोशन इधर हो रहा है, ठीक है? ओके। अब इस एरोप्लेन के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो होगा mg। यस और नो? ये एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है आकाश में, ठीक है, स्काई में। और इसके ऊपर क्या होगा? एक mg वेट एक्सर्ट करेगा जिसका कि डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। यस और नो? Yes, sir. तो इस प्लेन का इधर डायरेक्शन कहाँ हो रहा है?
इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है। इस एरोप्लेन का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है। Yes, sir. यस। और वेट कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है? 90 degree. 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। Yes. यस। और जब देखो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन बराबर क्या होगा? वर्क डन बराबर क्या होगा बेटा? हाँ, 0। क्या होगा? 0. 0। हमेशा याद रखना, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन क्या होगा? 0. 0। अब कूली को देखो, कूली को देखो बेटा, कूली को। Yes, sir. Yes, sir. कूली क्या करता है? जब हम लोग ट्रेन से उतरते हैं वो सामान लेता है। मान लो ये कूली है, ठीक है। मान लो ये कूली है, ठीक है। और इसके सर के ऊपर क्या है? लोड है। इट इज क्लियर। अब कूली मानो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब ये लोड का डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। होगा या नहीं होगा? होगा. होगा। अब बताओ, कूली का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और फोर्स का डायरेक्शन क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. Yes, sir. जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? 0. 0. 0. 0। ठीक है। इसलिए हमें क्या होना चाहिए? कुली को पैसा नहीं देना चाहिए, है कि नहीं? है ना? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या कुली कोई काम कर रहा है? No, sir. No, sir. जब वो काम कर ही नहीं रहा हम उसको पैसा क्यों दें? है ना? गुड क्योंकि वो क्वेश्चन। फिजिकली तो काम कर रहे हैं. फिजिकली से मतलब ही नहीं ना, फिजिक्स बोल रहा है कि वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसके द्वारा वर्क डन क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ठीक है। दिस ओके? यस। Yes, sir. Yes. Always remember that when force is perpendicular to the displacement, at that time work done is equal to 0. Okay, anyone have any doubt? No, sir. No. Shall I erase the screen? अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मानो ये कूली है, ठीक है। अब इसके ऊपर लोड है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फोर्स का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है। यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? 0. 0। चलो, अब ये कूली है, इसके ऊपर लोड है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है? सीढ़ी देखियो, सीढ़ी, रेलवे का सीढ़ी देखियो। Yes, sir. अब ये सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है। अब बताओ यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? सीढ़ी के ऊपर ऐसे से चढ़ेगा, पैर को ऊपर ऊपर करेगा, इस तरह से ऊपर नीचे करेगा। हाँ, जब जब ये कूली सीढ़ी के ऊपर चढ़ेगा, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा या नीचे? टेल मी। जब आप किसी चीज को सर पे लेके ऊपर चढ़ते हो तो उस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किधर होता है? नीचे होता है या ऊपर? या लेफ्ट में या राइट में? कहाँ होता है बेटा? ऊपर होता है। कहाँ होता है? ऊपर। ऊपर होता है। अब देखो, ये ब्लॉक है, इस पे क्या करेगा? ये जो कुली का सर है ये ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ब्लॉक के ऊपर, एफ।
यस और नो? अगर तुम्हारे सर के ऊपर कोई चीज ऑब्जेक्ट है, तुम भी क्या करते हो, एक फोर्स लगाते हो उसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। यस और नो? यस सर। यस सर। अब बताओ यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है ना? हाँ, ब्लॉक को जब हम ऊपर उठाते हैं तभी तो ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है। यस और नो? नहीं समझ में आया? बोलो, बोलोगे? पूर्वा, स्वाति, बेटा बोलोगे? Sir, can you explain again? हाँ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक को हम ऊपर ऊपर उठाते हैं अपने सर से, ठीक है? और ब्लॉक क्या होता है, जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं ऊपर डिस्प्लेस होता है या नहीं होता है? होता है। Yes, Yes, sir. sir. अब यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? Same. Same. यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? F into F D. into D. F इंटू डी। अब चलो ये ब्लॉक है और ये कुली है, इसके सर के ऊपर ये ब्लॉक है। अब ये कुली क्या हो रहा है, नीचे उतर रहा है। इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नीचे होगा, हुआ Yes, कि नहीं? sir. Yes, और sir. नीचे होगा. Yes, sir. और ये कुली इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएगा F। हाँ? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट? Opposite. 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 तो यहाँ पे वर्क डन बराबर क्या होगा, Minus F into D. माइनस F इंटू डी। किसी कोई डाउट है इसमें? No, No, sir. sir. नो। चला इरेज इट। Yes, sir. Sure. ओके, नाउ अब एक चौथा केस है, फोर्थ केस है और लास्ट केस है, ठीक है? ये क्या बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट एट एन एंगल टू द फोर्स। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, फोर्स के साथ कुछ एंगल पे हो रहा है। चलो देखते हैं। मानो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है? इसके ऊपर एक ब्लॉक है, ठीक है? अब इसके ऊपर इस तरह से एक फोर्स लग रहा है एट सम एंगल थीटा, ठीक है? और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं? No, sir. नो सर। ठीक है, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा एंगल पे एक दूसरे के साथ है। कितने एंगल पे है, कितने एंगल पे हैं, थीटा एंगल पे हैं, ठीक है? तो अब एक चीज बताओ, इस फोर्स का कितना कंपोनेंट होगा? ये जो थीटा, ये जो फोर्स है एफ, इसका कितना कंपोनेंट होगा, बोलोगे? इस फोर्स का कितना कंपोनेंट होगा बेटा, बोलो? 2 कंपोनेंट होगा। इस फोर्स का एक कंपोनेंट कहाँ होगा, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और एक कंपोनेंट कहाँ होगा, इन द वर्टिकल डायरेक्शन। इट इज ओके? Yes, sir. यस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा? हाँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा, बोलिए? हमेशा याद रखना, जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म करता है उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो होता है cos थीटा। तो इस f कंपोनेंट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नीट्यूड f cos थीटा। किसी कोई डाउट? No, sir. No, sir. वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, f sin थीटा। किसी कोई डाउट?
No, sir. नो नो सर। सर। अब एक चीज बताओ, क्या इस ब्लॉक का, बी ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? No, sir. नहीं। अब जब वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, तो क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वर्क डन होगा इस ब्लॉक का? यस और नो? क्या इस ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वर्क डन होगा? No. बोलो बेटा। No, sir. नो। इसका मतलब इस एफ साइन थीटा के कारण इस ब्लॉक का कोई वर्क डन नहीं होगा, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 होगा। Yes, sir. लेकिन अब देखो, ये जो एफ कॉस थीटा ये क्या है? इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। Yes, sir. अब इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण क्या हो रहा है? इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, Yes, sir. और मान लो ये डिस्प्लेसमेंट डी हो रहा है। अब बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क डन कितना होगा? अब सबसे पहले एक चीज बताओ, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन इस एफ कॉस थीटा का डायरेक्शन और इस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? Same. Same. सेम है। और जब सेम हो तो वर्क डन क्या होता है? F into D. यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ एफ क्या है? एफ कॉस थीटा क्या होगा? एफ कॉस थीटा इंटू डी होगा। Yes, sir. तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई फोर्स इंक्लाइंड हो, क्या हो बेटा? इंक्लाइंड हो, तो उस समय वर्क डन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 4f cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? f cos थीटा इंटू Into डिस्प्लेसमेंट। displacement. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? f d cos थीटा। इज दिस क्लियर? ये किसी कोई डाउट है इसमें? No, sir. नो। No, sir. अब देखो, वर्क डन का यूनिवर्सल डायरेक्शन, यूनिवर्सल डेफिनेशन यही होता है, f cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है यूनिवर्सल डेफिनेशन? f cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस। पता नहीं, लाइट जला दीजिएगा तुम। अब इसको मैं डिलीट करता हूं, ठीक है? अब यहां देखो, वर्क डन बराबर क्या है मेरे पास? f इंटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। किसी कोई डाउट? No. अब एक चीज बताओ, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा? कोई बताओगे? व्हाट सर, कैन यू रिपीट? मैंने आपसे पूछा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। बेटा 0 होगा। देखो, फोर्स का डायरेक्शन भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी इधर है। अब बताओ इस दोनों के बीच का एंगल कितना है? बोलो पूर्वा। 0. 0। अब बताओ cos 0 कितना होता है? हाँ, ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हो? व्हाट सर? हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हो? सर cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। यस, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब बताओ वर्क डन बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्क डन बराबर क्या होगा? cos थीटा क्या है? 1 है, 1। क्योंकि cos यहाँ पे cos थीटा के बदले क्या होगा? cos 0 डिग्री, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ से वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। होगा या नहीं होगा? हाँ,
बोलिए मुकुंद, पूर्वा। होगा सर। होगा। तो हमने पढ़ा भी क्या था कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सेम डायरेक्शन हो तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग कहां से डिराइव किए, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा से किए ना। यस सर। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, जो अभी क्लास हो रही है ना, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। उस यूट्यूब चैनल का आप लोग नाम लिख लो, ठीक है। क्या नाम है इसका, ठीक है, इट इज क्लियर। यस सर। यस सर। आप क्या करना, अपने क्लास के लेक्चर को, अगर कोई डाउट होगा इसको फिर से देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इट इज क्लियर, दामोदर एकेडमी बराई, आप नाम लिख लो, इसको सब्सक्राइब कर लेना। इसके ऊपर जो भी लेक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा सारा रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध होगा। इट इज क्लियर। यस सर। सर मेरी सिस्टर ने किया है, हाँ मेरे सिस्टर ने किया है ऑलरेडी। हाँ हाँ, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ यस पे, सर। अब देखो, अब मानो फोर्स, अब W बराबर क्या है, एफ डी कॉस थीटा है। अब एक केस लो, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नीचे है। अब बोलो दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, कितना होगा बेटा, यहाँ पे थीटा इक्वल क्या होगा, 180 होगा। देखो फोर्स का डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, इसके बीच का एंगल कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। 180। तो अब जब बताओ cos थीटा cos 180 बराबर कितना होगा, हाँ जी, cos 180 बराबर कितना होगा, हाँ, -1 कितना होगा, cos 0 बराबर 1 होता है और cos 180 बराबर कितना होता है, -1 कितना होता है, माइनस -1। वन। -1। अब बताओ यहां से वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, -FD होगा, यस और नो। यस। और हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो तो वहां पे वर्क डन क्या होता था, -FD होता था, यस और नो। यस सर। Yes, sir. और फिर लिखो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब चलो एक तीसरा केस देखते हैं, ये है फोर्स का डायरेक्शन और ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। ये मानो फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यस सर। अब बताओ cos 90 डिग्री कितना होता है, बोलिए बेटा, cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 कितना होता है, 0। 0। अब यहाँ पे हम जब cos थीटा की जगह पे cos 90 पुट करें और cos 90 का वैल्यू कितना होगा, 0, तो यहाँ से वर्क डन क्या होगा, 0। 0। हमने जब शुरू में पढ़ा था कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन क्या होता है, 0। किसी कोई डाउट। नो सर। तो अब आप क्या याद रखोगे, वर्क डन बराबर क्या याद रखोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, क्या याद रखोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस इनटू थीटा। कॉस थीटा। कॉस थीटा। किसी को कोई डाउट है अभी तक, नो सर। नो। अब इसके बेस पे क्वेश्चन करें। यस सर। मान लो ये एक सरफेस है और ये ब्लॉक है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ मानो 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। इज दिस क्लियर। अब मानो कुछ समय बाद ये ब्लॉक इस प्लेस पे आ जाता है, ठीक है, और मान लो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ है,
ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कि 2.0 मीटर हो रहा है, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज वर्क डन हियर। अब सबसे पहले देखो, ये जो फोर्स है ये क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, हाँ सर। और फोर्स क्या है, इस डिस्प्लेसमेंट के साथ इंक्लाइंड है, मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और ये है ना फोर्स की डायरेक्शन। मतलब क्या, फोर्स क्या डिस्प्लेसमेंट के साथ इंक्लाइंड है। Yes, sir. यस। अब जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ इंक्लाइंड हो तो वर्क डन बराबर क्या होता है, क्या होता है बोलो बेटा, क्या होता है वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा होता है। यस सर। अब ये थीटा कौन सा एंगल होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। हाँ, तो यहां से वर्क डन बराबर क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस 30 डिग्री होगा। और Yes, फोर्स sir. का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 5 Newton. 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 meter. 2 मीटर इनटू कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री होगा, कितना हो जाएगा 10 कॉस 30 डिग्री होगा, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, Under root 3/2. अंडर रूट 3/2। यहां से क्या हो जाएगा 10 इंटू अंडर रूट 3/2 होगा 2 5 का आंसर क्या हो जाएगा 5√3 जूल होगा आंसर। Yes, sir. यस और नो। हाँ, तो यही था वर्क डन के बारे में हमें पढ़ना था, ठीक है। किसी को वर्क डन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, यू कैन आस्क। यहाँ पे वर्क डन समाप्त हुआ है और कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे और उसके बाद पावर को पढ़ेंगे। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। No, sir. नो। आप लोग को जहां पर भी डाउट आया होगा आप क्या करना, एक बार इस वीडियो लेक्चर को फिर से जाके यूट्यूब चैनल पे देख लेना। ओके ओके Yes, sir. Yes, ओके। sir. Shall I close the class now? Okay, sir. Okay. Okay, Bye sir. Bye. everyone. Bye. बाय सर। Bye. Bye everyone. Bye beta. Bye.